and good morning to all of you friend. uh, in the previous lecture, till today we already completed the chapter number 5, and in your syllabus we already completed chapter number 1st to 5th, and now in this lecture we will going for our next chapter, that is chapter number 6th, and the chapter is the market. So now friend, please come on your books page number 63, the chapter that is the market. This chapter contains the various concept about the market in the economics. The first one, that is the meaning of market, and the second one, that is the characteristics of market. And there are five characteristics. The first one, that is the numerous sellers and buyers, goods and service, contact, price, information about market situation. And the next topic, that is classification of market. The first one, that is market based on location. Second one, that is the market based on quantity. And in the first, that is the market based on location, and there are various four different points. There is the local market, regional market, national and international market, and then the market based on quantity, wholesale and retail market. Market based on competition, and the next question, that is a perfect competition definition and characteristics of perfect competition market. And there are six characteristics, that is the numerous buyers and sellers, identical products, free entry and exits of firms, and then perfect knowledge of the market, and mobility of factor of production, then no transportation expense, and the monopoly market, that is the only one seller in the market. And characteristics of monopoly, then monopolistic competition, characteristics of monopolistic competition, and oligopoly, and the last one, that is the characteristics of oligopoly market. And now we will going for the intro, that is generally the place where there is a purchase and sale of commodities and services called market. यानी कि फ्रेंड सिंपल मीनिंग है कि जहाँ पे भी हम कमोडिटीज़ हो या तो सर्विस, दोनों को परचेज या तो सेल कर रहे, दैट इज मार्केट. द कंसेप्ट रिगार्डिंग मार्केट इन इकोनॉमिक्स मोर एक्सटेंसिव देन अ प्रिवेलिंग आइडिया. यानी कि फ्रेंड मार्केट का जो मीनिंग है या तो जो कंसेप्ट है वो बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ही वाइड है, जैसा हमारा आइडिया है करंट टाइम के लिए कि मार्केट यानी कि सिंपल वहाँ पे परचेज या तो सेलिंग होती है. तो वहाँ पे हम गलत हो सकते हैं कि मार्केट का जो कंसेप्ट है बहुत ही एक्सटेंसिव है, बहुत ही वाइड है. अब जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ मार्केट. द सिस्टम थ्रू विच द बायर्स एंड सेलर गेट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड मार्केट. तो फ्रेंड सिंपल मीनिंग कि जहाँ पे भी जो प्लेस है कि वहाँ पे बायर्स या तो सेलर्स दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, फॉर सेल और परचेज, यानी कि जो बायर्स होंगे वो परचेस करेंगे और सेलर होंगे वो सेल करेंगे. क्या? तो गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड मार्केट. तो फ्रेंड एक ऐसी सिस्टम है मार्केट कि जहाँ पे बायर्स एंड सेलर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, एंड जो सेल या तो परचेस करते हैं गुड्स या तो सर्विस. According to Professor Samuel, market is a functional system where the buyers and seller contact each other to decide the price and the quantity of goods or service. यानी कि फ्रेंड मार्केट एक ऐसी सिस्टम है कि जहाँ पे जो बायर से या तो जो सेलर से दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और जो प्राइस एंड क्वांटिटी वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं. तो सिंपल ये कि आप कहीं पे भी मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी क्वांटिटी और जो भी क्वांटिटी की जो प्राइस होगी आप मार्केट में जाकर क्या करोगे, डिसाइड करोगे. वो यहाँ पे सैमुअल ने किया हुआ है, और सॉरी कहा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट. अब मार्केट के यहाँ पे जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स है अलग अलग, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. मार्केट इज ऑन पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ फॉलो. द फर्स्ट वन, दैट इज द न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स. यानी कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में बायर्स होंगे एंड सेलर होंगे. इट इज़ मैंडेटरी टू हैव बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन मार्केट. यानी कि फ्रेंड मार्केट के अंदर मैंडेटरीली होगा कि बायर्स हो या तो सेलर्स हो,
वो क्या करे, गुड्स एंड सर्विस को मार्केट में सेल करे। द पर्पसफुल एक्सचेंज मेड थ्रू देम फॉर गुड्स और सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेल्स। यानी कि मार्केट के अंदर की फ्रेंड हम यहाँ पे बात करें कि मार्केट के अंदर जो गुड्स है या तो जो सर्विस है उनकी क्या होती है, परचेज एंड सेलिंग। दिस प्रोसेस अलाउज द सेलर्स टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। तो फ्रेंड हमें पता है कि जो सेलर्स वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो किस लिए कर रहे हैं, फॉर दी मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए। एंड द बायर्स टू गेन द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट। और जो बायर्स है वो बायर्स क्या यहाँ पे करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट वो परचेस कर रहे हैं वहाँ से उन लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले वो प्रोडक्ट का यूज़ करके। The next one, that is the goods and service. It is a necessary that there are a goods and service available according to the demand and necessity. यानी कि फ्रेंड मार्केट अगर है तो मार्केट के अंदर जो भी गुड्स है या तो जो भी सर्विस है वो अवेलेबल वहाँ पे होंगे। To gain maximum profit, the producer and sellers provide the products and service in a various types and form and try to attract the buyers towards them। यानी कि फ्रेंड जो भी यहाँ पे प्रोड्यूसर है या तो जो सेलर है वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट या तो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग वेरियस टाइप्स की, उसमें अलग अलग फॉर्म्स भी हो सकते हैं और बायर्स को लोग क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एंड वाइल फॉर देयर सेटिस्फेक्शन द बायर्स ट्राइज टू बाय एन आइडियल सेट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस। यानी कि जो भी बायर है वो परचेस करेंगे वो प्रोडक्ट एंड उसमें से उन लोगों को क्या होगा कि कुछ सेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा उस प्रोडक्ट को यूज़ करके। द नेक्स्ट वन दैट इज द कॉन्टैक्ट। तो फ्रेंड अगर समझो कि कोई भी प्रोडक्ट की हम सेलिंग कर रहे हैं तो जो भी वहाँ पे लोग हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे। कॉन्टैक्ट द बायर्स एंड सेलर्स कम इन मान कॉन्टैक्ट वी आर वेरियस मीन्स। यानी कि अलग अलग जो भी मीडियम है उनसे वो लोग क्या आएंगे, कॉन्टैक्ट में। द कॉन्टैक्ट मेड कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड प्रेजेंटली द बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट वी आर फॉलोइंग मीन्स। यानी कि टेली शॉपिंग and online shopping where the buyers themselves order the service or products through a telephone। तो फ्रेंड आपने देखा होगा कि आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे नापतोल। नापतोल की आपने एडवर्टाइजिंग देखी होगी कि वहाँ पे वो नंबर प्रोवाइड करते हैं और उस नंबर में आपको कॉल करना है टेलीफोन नंबर में। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्टैक्ट होगा वो टेली शॉपिंग कॉन्टैक्ट रहेगा। ऑनलाइन शॉपिंग लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड शॉप क्लूज। तो ये सब यहाँ पे जो भी मीडियम है दैट इज़ द ऑनलाइन वेयर द बायर्स ऑर्डर्स द सर्विस और प्रोडक्ट्स विच दे सिलेक्ट ऑन अ वेबसाइट विया इंटरनेट। यानी कि आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, शॉप क्लूज हो या तो कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, वहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। Thus, by the means of teleshopping and online shopping, the buyers and sellers can come indirectly in contact। यानी कि आप फ्लिपकार्ट के ऊपर से कोई भी प्रोडक्ट समझो कि परचेस कर रहे हो, एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ईयरफोन, और ईयरफोन अगर आप परचेस कर रहे हो तो वहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे और थ्रू द ऑनलाइन शॉपिंग आप क्या हो सकते हो, जो भी यहाँ पे सेलर है उनके साथ इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने पहले अलग अलग जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट किया है। द फर्स्ट वन दैट इज द न्यूमरस, सेलर्स एंड बायर्स, गुड्स एंड सर्विस, एंड द थर्ड वन दैट इज द कॉन्टैक्ट। एंड देन द नेक्स्ट वन दैट इज द प्राइस। तो फ्रेंड यहाँ पे प्राइस के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि प्राइस यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो उस प्रोडक्ट के लिए आप को जो भी यहाँ पे वैल्यू पे करने की जरूरत पड़ेगी दैट इज द प्राइस। At a given time, the price of the product or service must be decided in the market। यानी कि फ्रेंड जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट या तो जो सर्विस है उनकी प्राइस क्या होगी यहाँ पे डिसाइड होगी। द प्राइस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड द फैक्टर्स रिलेटेड टू इट्स सप्लाई। यानी कि प्राइस जो यहाँ पे डिसाइड होगी वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे डिसाइड होगी। यानी कि अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, कम, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्राइस क्या हो सकती है, प्राइस इज़ अ मोर। एंड अगर समझो कि सिचुएशन उल्टी है कि डिमांड कम है एंड सप्लाई इज़ मोर, तो प्राइस यहाँ पे क्या हो सकती है, डिक्रीज, की सप्लाई क्या है, ज़्यादा। यानी कि प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन द डिमांड एंड सप्लाई एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस डिपेंड ऑन द डिमांड मेड बाय बायर्स एंड द एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर एंड सेलर्स टू सप्लाई देम। यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जो सर्विस डिपेंड रहती है डिमांड के ऊपर,
कि कितना हम यहाँ पे प्राइस रखें, या तो जो भी प्राइस डिसाइड करते हैं उनकी डिमांड के ऊपर बेस रहेगा। एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूसर एंड सेलर्स टू सप्लाई देम, यानी कि अगर हम डिमांड ज़्यादा है और सप्लायर जो है वो कम सप्लाई दे रहा है तो यहाँ पे प्राइस क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। एंड अगर समझो कि डिमांड कम है और सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा है तो प्राइस क्या हो सकती है, डिक्रीज। द नेक्स्ट वन दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। तो फ्रेंड आप कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में से परचेज कर रहे हो तो आपके पास जो भी मार्केट है उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इट इज़ important that the buyers and sellers have information about the current market situation so that decision related to production, distribution and purchase can be taken during the times of recession, inflation and natural and man-made calamities। यानी कि फ्रेंड जो भी बायर्स है या तो जो सेलर्स है उन लोगों को मार्केट के बारे में और मार्केट की सिचुएशन के बारे में क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि अगर उनको कोई भी डिसीजन लेना है एट द टाइम ऑफ रिसेशन, इन्फ्लेशन एंड नेचुरल या तो जो मैन मेड कैलामिटीज़ है उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो अलग अलग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कशन किया। द फर्स्ट वन दैट इज़ द न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स, द सेकंड वन दैट इज़ द गुड्स एंड सर्विस, कॉन्टैक्ट वे टेली शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, प्राइस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। Within 2 minutes, please read the meaning and characteristics of market. Please read it, continue. Okay, friend, please come on page number 65. The classification of market, and classification is based on the competition, market based on location. The second one that is the based on quantity, and the third one that is the competition. तो यहाँ पे अलग अलग जो तीनों पार्ट के हम बारे में डिसीजन करेंगे। द फर्स्ट वन दैट इज द लोकेशन, सेकेंड वन दैट इज द quantity and the third one that is the competition. The market is classified in many ways. Market based on a location, time, form of product, quantity of product, control and competition are the various types. Here we will study market based on location, market based on quantity and market based on a competition. तो फ्रेंड अलग अलग जो भी यहाँ पे हम बेस ले रहे हैं फॉर दी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, तो अलग अलग इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत से ऐसे बेस हैं, लोकेशन है, टाइम है, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, कंट्रोल एंड कंपटीशन। लेकिन आपके जो सिलेबस में यहाँ पे मार्केट इज बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड बेस्ड ऑन कंपटीशन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट वन दैट इज अ मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन are classified according to geographical location where they are situated. The first one is the local market, second one that is the regional market, the third one that is the national market, and the fourth one that is the international market. तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट वन है दैट इज द लोकल मार्केट, द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट द सेम प्लेस आर कोल्ड लोकल मार्केट्स। तो फ्रेंड सिंपल है कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। यानी कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ ही सेल हो रहा है, दैट इज़ द लोकल मार्केट। दे आर लिमिटेड टू द रिस्पेक्टिव सिटी और विलेज। फॉर एग्जाम्पल मार्केट फॉर क्ले एंड टेक्सटाइल। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भी मार्केट है लोकल मार्केट की हम बात कर रहे हैं,
तो लोकल मार्केट में क्या होगा कि जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो वहाँ ही इसका सेलिंग रहेगा, जो लिमिटेड टू सम रिस्पेक्टेड सिटी और विलेज। यानी कि अगर हम अहमदाबाद में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनका सेलिंग भी कहाँ पे होगा, अहमदाबाद में ही होगा। अगर समझो कि हम सूरत में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सेलिंग इज ऑल्सो इन सूरत। नाउ द सेकेंड वन दैट इज द रीजनल मार्केट। When the selling of the products and services is limited to a region or state, then it is called regional market. तो friend please make underline, when the selling of products and services is limited to a region or state, then it is called regional market। यानी कि आप समझो कि अहमदाबाद में प्रोडक्शन हो रहा है और उनकी सेलिंग हम कर रहे हैं सूरत में, तो दैट इट्स मार्केट इज़ अ रीजनल मार्केट। अब समझो कि हम अहमदाबाद में प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेलिंग हो रही है बड़ौदा, दिस इज़ अ रीजनल मार्केट। समझो कि बड़ौदा में प्रोडक्शन हो रहा है और सेलिंग भी कहाँ पे हो रही है, बड़ौदा में ही हो रही है, दैट इज़ द लोकल मार्केट। यानी कि विद इन सिटी, सेम सिटी में अगर सेलिंग हो रही है दैट इज़ द लोकल मार्केट, एंड अगर विद इन अ सेम स्टेट सेलिंग हो रही है दैट इज़ द रीजनल मार्केट। यानी कि गुजरात में प्रोडक्शन हो रहा है और सेलिंग भी कहाँ पे हो रही है, गुजरात में ही सेलिंग हो रही है, दैट इज़ द रीजनल मार्केट। यानी कि लिमिटेड टू रीजन और स्टेट। It means that the diverse market in a state come under the category of regional market, and this market are spread in a various regions of state. For example, in Gujarat, the market in Ahmedabad and Vadodara are a regional market. Example, Gari of Surat, and the regional films and regional books, etc. That is the regional market. द नेक्स्ट वन दैट इज़ द नेशनल मार्केट। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे जो लिमिटेशन होगी कि थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि अगर आप विद इन कंट्री कोई भी प्रोडक्ट को सेल करें दैट इज़ द नेशनल मार्केट। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझो कि हम जो प्रोडक्शन है वो अहमदाबाद में कर रहे हैं और जो सेलिंग है वो जयपुर में हो रही है, that is the national market. It is not regional or local market, because in the local market the selling in the same city, and in the regional market the selling in the different city within a same region or state, and in the national market the selling is just throughout the country. तो अहमदाबाद टू जयपुर या तो अहमदाबाद टू औरंगाबाद, that is the national market. When the products and services are purchased and sold throughout the country, then market is called national market. Please friend make underline, when the products and service purchased and sold throughout the country, then the market is called national market. This market is spread throughout various state of nation. Example, dairy products, सारी मार्केट एंड हिंदी नॉवेल्स। तो फ्रेंड ये अलग अलग जो टाइप्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि डेयरी प्रोडक्ट की, अगर हम गुजरात में अमूल डेयरी प्रोडक्शन कर रही है तो पूरे इंडिया के अंदर वो क्या कर रही है, सेलिंग कर रही है, दैट इज़ द नेशनल मार्केट। एंड द लास्ट वन दैट इज़ द इंटरनेशनल मार्केट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ग्लोबल मार्केट। तो फ्रेंड ग्लोबल मार्केट हम क्यों बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि international market, that is the global market. This market is extended to various country of the world। यानी कि फ्रेंड इंटरनेशनल मार्केट में हम अलग अलग कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। द सेल्स एंड परचेज इन दिस मार्केट इज जनरली रिफर्ड टू एज अ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एग्जाम्पल, मोबाइल फोन्स, इंग्लिश नॉवेल्स। तो फ्रेंड जो इंटरनेशनल मार्केट है वो मोबाइल फ़ोन की हम बात कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा, ओप्पो है, MI या तो वीवो, दिस ऑल दी कंपनीज फ्रॉम दी चाइना, यानी कि प्रोडक्शन इन चाइना एंड सेलिंग इन इंडिया, then it is an international market. Due to new invention, better transportation and communication facility, cold storage facility, there is a change in the classification based on the location and geographical area. The same items and service can be of both the regional and national market simultaneously। यानी कि फ्रेंड आज हमें पता है कि अलग अलग जो न्यू इन्वेंशन हुए हैं या तो जो बेटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज की हम बात कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे कोई ऐसे क्लासिफिकेशन मार्केट का रहा नहीं है बेस्ड ऑन लोकेशन एंड जियोग्राफिकल एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि
कोई भी प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट की अगर हमारी इंडियन मार्केट में है तो लोकल मार्केट में आ रही है, तो भी यहाँ पे अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उनके यूज से हम इनको सेलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमने कंप्लीट कर दिया फर्स्ट, दैट इज द मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, एंड द रिमेनिंग्स टू दैट इज द मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड कंपटीशन, एंड इट इज कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ पे रख रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, एंड टेक केयर, बाय बाय।